Hello everyone. Today I'm going to uh, share with you all some strategies and tips and tricks to solve the questions asked in the ISC exams, ISC, ICSC, basically ISC, CBSC, and also some JE exams. But the JE questions in the next session I'll focus more. But basically I'm considering the ISC and the CBSC class 12. Okay, only class 12 I'll be focusing on. So ISC and CBSC mathematics. Okay, and the specific chapter today I'll be covering some questions of the chapter integrals. Integrals or integration we can take, that is not an issue. So that is not an issue. So without wasting our time, we'll start with the questions. Okay, yeah. So first of all, you can see the first question is given. So this all the questions I have taken from the specimen papers of ISC class 12, the previous year questions of ISC board class 12, and also the CBSC board. Some questions are given in the last. So I will also share from where CBSC starts, but those are all ISC first 16 to 18 to 19 slides, or 15 to 16 slides are majorly ISC questions. So at the last, some questions were CBSC boards questions. Some of the questions in the next video I'll cover the rest. Try to cover the rest of the CBSC's questions because majorly here ISC's questions I had covered. So first question is that we can see log x whole square dx by x, log x whole square by x dx. This integration equals to log x to the power k by k plus c. So they have asked the value of k. So we'll solve it simply. There is nothing complicated in it. So we'll write here. Okay, we'll write here log x whole square. I'm simply writing the question log x whole square by x dx, and this was integral. Okay, so this is nothing but integral symbol. So I can just try to erase it and give it properly because the symbol is very significant. So integral. Okay, so now it's proper, I hope. So this formula, nothing we need to do here. We just simply substitute. We simply substitute log x equals to z. Method of substitution. MOS. Method of substitution. We simply substitute. Substitute. I am simply writing substitute log x equal to z. Now what will happen? Differentiate both sides. Okay, simply differential. So what you will get? Log x differentiation is 1 by x. So 1 by x dx equals to dz. That is, this implies first we can write different. This implies you can write here directly. Okay, no problem. But you can write differentiating both sides. Okay, just write like this, not with respect to some variable. If you are differentiating with respect to x, then that will become something else. So differentiating just both sides. Okay. So now we can see from here. So dx by x equal to dz. So from here you can see that dx by x, this part is here. So you can put here simply na. So integral of this is now log x becomes z. So z square dz, because dx by x we substituted at dz. Okay. So now again we can see that integral, now it's becoming proper. Now at first it was very bad. So integral of this, we know that I'm using the formula. Sorry. Mm,
I have to do something. Okay, okay, wait. Every one of us know the formula that if a integral is given, if an integral is given like this, I'm adding a page. That will be a better thing. Yeah. So if an integral is given like this, x to the power n dx, okay, and we are asked the integration, so we know that the formula is x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c, where c is the constant of integration, COI. Don't write like this in the exam, you should write like that. Okay, so z square. So what will be the result of this? What will be the result of this? You can say, simply you can say na, z cube by 3. How? How? Please observe. Z is square. So z n here is 2. N here is 2. So z raised to the power n plus 1. That is 2 plus 1. Z raised to the power 2 plus 1. Whole divided by n plus 1. That is 2 plus 1 again. Plus c. So these are final thing. So you can see. Go here. So n was 2 there. Z square. So its integral will be simply equals to z raised to the power 2 plus 1 by 2 plus 1, that is equals to z cube by 3 plus c. So constant will be then. So this is the simply you can say this is everything. So z cube by 3, that is nothing but z cube. So I'm deleting it. No need to delete it. We do one thing. We take out the eraser. Okay, and I just erase some part, and I do one thing more. Yeah, I minimize that. So that will be better. So no need to delete now. So from here you can write directly. You can write. Okay, from here this step. So I'm showing with an arrow. I went there, and I can put back. Put back z equals to log x. Okay, put back. Put it back simply in the result. In back in the result. तो हम रिजल्ट में इसको पुट बैक किए z इक्वल्स टू log z, सो z इक्वल्स टू log x. तो इधर पे पहले देख सकते हैं कि सिंपली आप लिख लीजिए इसको इक्वल्स टू z क्यूब बाई 3 प्लस c, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू सिंपली log x, z इक्वल्स टू log x. तो log x का क्यूब, log x होल क्यूब बाई 3 plus c. So they had asked what is k. We can observe here, so you can see k is nothing but 3. So it is very simple problem, and it was 1 mark. So option A is correct. A for Agra, k is nothing but 3. It was 1 mark question. MCQ question. You can do in 1 minute actually. Not 1 minute, even fraction of second. If you are just analyzing this form, so in mind also you can do. So now I'm jumping to the next question. So this is our next question. They had asked. It is a formula of integration. We know indefinite integral basically fx dx. Okay, if this is the integral, okay, I and this has to be integrated. Okay, I. So now we can write na j again like this, I equals to, and the limits must be there now obviously, otherwise you cannot do from here. So b a, we assume here the upper limit is a, lower limit is b, lower limit b, and a is the upper limit. You can interchange them also. If मतलब क्या बोल रहे हैं ये, you can swap these limits with a minus sign. Okay, or it can be anything, any constant, but upper limit is always greater than the lower limit. It is it always solves strictly greater. Okay, not equals to it, greater. And if someone is giving like this 3 3, then it's cancel out, so strictly greater. So this is the thing, upper limit. You can write like that also. Instead of a, I could have written here b also, because those are constant. Okay, those are constant, and in that case b must be greater than a for this one, and for the previous one a is b. If you write a and b here and here, so if you swap the position, you must
also reverse the inequality sign. So that's the basic fact. So you can write for the definite integration formula that if assuming b and a only, because b is greater than a, we are assuming using the ASCII code. If you American standard code for information interchange, if you assume this code, so b will be greater, no? So like that we are assuming, but it does not happen. By real analogy I am saying. So fx dx, so now you can write it like this: f of a plus b minus x, okay, dx you can write like that, no? That is the property of definite integral. So now, and if it is second equation and this one is first equation, you simply add them, 1 plus 2, then the left hand side and the right hand side, okay, again left hand side of this and right hand side will be added. So if you add I plus I, see, left hand side and left hand side, I plus I clubbed together, 2I twice of I equals to integral a to b fx dx plus integral of a to b f of a plus b minus x dx. Sorry, extremely sorry. I have to erase them. A plus b minus x dx. Okay. So from this you can see here it is 2a fx dx, see, a 0, and then the value of k is. Now you will be confused. What happened here? Instead of 2, what is this? So another formula, if you can remember, I hope you will all be remembering that integration of 0 to 2a, right, fx dx, this will be equals to twice of 0 to a fx ds. When we know, when when this is going to happen, if f of twice of a minus x equal to fx, okay, if otherwise if it is minus of fx, अगर वो माइनस ऑफ fx हो जाता है fx की जगह, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इट मस्ट बी इक्वल टू 0. सो यही है आपका फंडामेंटल. इसके बाहर आपको जाने, आप लोगों को जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा. तो यहाँ से देख सकते हैं. और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, एक पेज ऐड करके सिंपल, कि एफ एक्स डी एक्स जो होता है उसका आप इंटीग्रेट करो 0 से ए तक, कोई दिक्कत नहीं हमको. सॉरी 0 से कितना, 2a, हाँ 2a तक करो. इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स 0 से ए तोड़ेंगे, ठीक है, प्लस 0 से ए एफ ऑफ, क्या लिख सकते हैं अभी, 2a माइनस एक्स लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक है. तो अभी देखिए, ये फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे, आप सॉरी again I am sorry, I have to undo I think, yeah. ये फॉर्मूला अगर आप लोग सिंपली यूज कर लेंगे तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा. फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को. हाँ, ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर लीजिए और देखिए इधर पे एनालाइज करके, ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए और एनालाइज, मतलब एनालाइज कीजिए इस क्वेश्चन को. तो के का वैल्यू क्या आना चाहिए, 2a आना चाहिए, सिंपल. सो 2a, द आंसर मस्ट बी नथिंग बट 2a. तो यही है आपका बेसिक्स, ठीक है. इसका डेरिवेशन झमेला का नहीं है, सिंपल है. बस ये प्रॉपर्टी आप यूज करना है इंटीग्रल का, ये बस प्रॉपर्टी के ऊपर खेल था और कुछ नहीं था. ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2i इक्वल टू दिस एंड I equals to just half of that, half of those, okay, and you can take out this 2, no problem, and half will be cancelled out by that.
सो दैट इज नॉट एन इशू। सो दो दो क्या कट जाएगा, दो का बाहर लाओ, कोई दिक्कत नहीं, 0/0 है क्योंकि। तो ऐसा एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का, मैं बता देता हूँ कि एक इंटीग्रेशन अगर ऐसे लिखा हुआ आपका 0 से लेके n है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स 0 से लेके होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, एक 0 होना ही चाहिए। फिर और एक दिया होगा एक 0, एक लिमिट 0 होना चाहिए, मतलब कोई भी लिमिट अपर या लोअर, अगर लोअर अपर आप इंटरचेंज करो माइनस साइन से, तो एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। सो 0 से लेके ए लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है। तो एक काम करेंगे हम, एन ए बाई एन और 0/n, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, इधर n मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं है, मतलब n को बाहर ला सकते हैं, मतलब यह जाएगा n कट गया तो n को आप बाहर लाओ, इधर से भी फिर बाहर लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक से आप बाहर ला रहे हो दूसरे को आप छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो ए बाई के, ए बाई एन कुछ भी रहे, के भी रहता तो बी रहता तो ऐसा नहीं 0 ही होना चाहिए इधर आपका, अगर बी भी रह जाता सपोज, सॉरी अब 0 ऐसा नहीं, 0 ही होना चाहिए। 0 का तो अच्छा होता है, लेकिन अगर ए भी रहता है तो इन दैट केस बी बाई एन लिखो, ए बाई एन लिखो, एन कोई भी कांस्टेंट होगा, एन इक्वल्स टू एन बिलोंग्स टू कांस्टेंट, मतलब रियल रियल प्लस, हाँ रियल प्लस ही लिख सकते हैं आप, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बाई के या ए बाई एन के कुछ भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट होना चाहिए बस। ओके, सो इससे आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला भी अब लगा हुआ था ऐसे, हाफ टू बाहर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब a प्लस बी माइनस एक्स, ये सोचो जस्ट, इधर a प्लस बी, इधर एक तो 0 है तो दूसरा 2 है, तो 2a प्लस 0, ये फॉर्मूला लगा कब समझ में आएगा आपको कि हाँ ऐसा ही लिखा है इन्होंने, ठीक है। और मतलब ये दो प्रॉपर्टी लगा है, एक तो ये प्रॉपर्टी 2i को हाफ, और फिर इधर पे क्या था आपका, इधर पे लिमिट ऐसा नहीं था, इधर पे a था ना, मैं इधर दिखाने के लिए लिख दिया, हाँ इधर पे b इक्वल्स टू क्या है, 2a है कि नहीं, और ये 0 है, इधर पे b इक्वल्स टू 2 है, ये 0 है, तो मैं बोला क्या, a/2, मतलब 2 कांस्टेंट को आप बाहर निकालो, इधर से भी कांस्टेंट को आप बाहर निकालो, ठीक है, हाफ इंटू टू टू टू, तो टू टू क्या बाहर में, टू टू क्या बाहर में, ठीक है, रफू चक्कर हो गया, ठीक है, शांति से अब ऐसे लिख सकते हो आप। तो a प्लस अब क्या होगा, 2a, प्रॉपर्टी से भी बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही काम आपका था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और दिखाते हैं, हाँ थर्ड क्वेश्चन, ये सेमी ईयर में स्पेसिमेन पेपर से मोस्ट प्रोबेबली या फिर 2023 का पेपर से लिया हुई है, इनको याद नहीं आ रहा, आईएससी का। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बस एक प्रॉपर्टी आप सबको बता देता हूँ, उसके बाद सब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कर पाओगे। ई टू द पावर एक्स ऐसा कर रहे हैं, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी एक्स, ऐसा कर रहे हैं। और एक चीज लिख लीजिए कि एफ डैश एक्स क्या है, सॉरी, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स जो होता है वो क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है, तो एफ डैश एक्स होता है। तो ऐसा अगर फॉर्म में आपका दिया गया है कि ई टू द पावर एक्स इंटू एक फंक्शन, मतलब ब्रैकेट के अंदर आपको दिखना पड़ेगा, प्लस एफ डैश एक्स, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका आंसर जो आता है निकल के, वो ये आप जो आइलेट रूल होता है, मतलब इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल, या फिर लिएट रूल भी बोलते हैं LIAT, ठीक है। ये थोड़ा इंटरचेंज करते हैं कुछ कुछ बुक में, लेकिन आइलेट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड, क्योंकि इसको मैक्सिमम जवाब बाय यूजिंग दिस रूल, ये आपको बताएगा कि दिस इज इक्वल टू नथिंग बट e टू द पावर x इनटू द फंक्शन इटसेल्फ, fx, ओके, प्लस c। तो इधर पे आप देखोगे, इधर पे आप देखो, मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ इस क्वेश्चन को, आपको कुछ नहीं करना है, बस एनालाइज करना है। देखिए कि e टू द पावर x, इसको अगर आप लिखना चाहे आप सब लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ना, e टू द पावर x, x इसको स्प्लिट कीजिए, x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, dx, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो x तो कट जाएगा,
और ये गया तो 1/x e टू द पावर x 1/x e टू द पावर x into 1/x minus 1/x² dx। अब एक चीज देखिए, इधर पे fx क्या है, 1/x है, और 1/x का डेरिवेटिव अगर निकाले तो क्या आएगा, x टू द पावर -1। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर हम x टू द पावर n का डेरिवेटिव लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ दिस, दैट इज नथिंग बट n x टू द पावर n -1। सही है, तो इधर पे आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x टू द पावर -1 का -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 मतलब -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, दैट इज नथिंग बट -1/x², माइनस एक्स टू द पावर -2 मतलब -1/x²। सो ये -1/x² क्या है, इसका डेरिवेटिव है, तो ये अगर 1/x है तो ये -1/x² है। इसको हम लिख सकते नथिंग बट प्लस ऑफ -1/x²। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अब, या अब क्या मैंने बोला e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, मतलब e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, तो अब एफ एक्स क्या है 1/x। कोई दिक्कत है नहीं है, तो चलो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रीवियस का मैंने बताया था ना। ठीक है, सी फॉर चेन्नई, ऑप्शन सी सही है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपली आप देख पाएंगे इधर इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² बस कॉमन लेना है। अब बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगा, x-1। तो इसको अगर ऐसे लिखे कि x² अगर कॉमन ले तो x-1 प्लस 1 इंटू x-1 dx, ऊपर तो नीचे रहेगा आपका x-1। तो इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स के, मतलब कॉमन लेके जो अलजेब्रिक का जो पॉलिनोमियल पढ़े हैं, मतलब बेसिक अलजेब्रा, कि x-1 इंटू x² प्लस 1, इस वजह से लिख सकते हैं। मतलब स्प्लिट करने के पहले जो होता है उसको जोड़ देते हैं, मतलब उल्टा, अगर x² प्लस 1 इंटू करते हैं, ठीक है, उसे दिए जाता है, इसलिए x² प्लस 1 इंटू x-1, तो dx, मतलब x-1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है इधर से, सो dx सिंपली बोलने का सिंपल माने है कि इसको कॉमन ले लो इधर से, तो क्या x² प्लस 1 आ जाएगा, नीचे तो x-1 है, तो यही है रफू चक्कर, गया घर गया, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 dx। तो अब आप बता सकते हैं इधर x² dx को स्प्लिट कीजिए ना, सिंपल x² dx प्लस 1 इंटू dx, मतलब सही है। तो अब इसको लिख सकते हैं ना x टू द पावर n वाला फॉर्मूला से, x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 मतलब x रेस टू द पावर 0, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, एनीथिंग कुछ भी, x y z कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर x है वेरिएबल, इसलिए वेरिएबल टू द पावर 0। तो सिंपल उधर पे लिख सकते हैं x टू द पावर 0 प्लस 1 यानी कि x टू द पावर 0 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं आप, बाई 0 प्लस 1, ये नथिंग बट 1 है, ये भी नथिंग बट 1 है, मतलब x टू द पावर 1 क्या हो जाता है, x ही हो जाता है। तो सिंपली लिख सकते हैं इधर से x बाई 1 मतलब क्या होता है, फिर भी x/1, देखिए 0 प्लस 1 है, x/1 अगेन x है, तो सिंपल लिखेंगे x³ प्लस x³ बाई 3 प्लस x प्लस c। इसको अगर और भी सिंप्लीफाई करना चाहे दैट इज इवन पॉसिबल, x³ बाई 3, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि x³ प्लस 3x प्लस 3c होल डिवाइडेड बाई 3, इसको आप फिर से लिख सकते हैं, या कैपिटल सी स्मॉल से कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 ऑफ x³ प्लस 3x प्लस c1, दूसरा कोई कांस्टेंट, और c1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये एक कांस्टेंट है, और c1 होगा 3c के बराबर, मतलब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर और लिखने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू वर्क, ऐसे ऐसे लिखेंगे फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ये फालतू का स्टेप्स है ये दो, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, ये एक न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये हो गया बात, तो हो गया ये सॉल्व। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए मैं जो रूल बताया इससे ये हो जाएगा, मैं बता सकता हूँ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाफ इंटू बी माइनस ए, मतलब बी इधर पे क्या है, अपर लिमिट है, ए क्या है, लोअर लिमिट है, तो ये नथिंग बट हाफ इंटू 8 - 2, दैट इज 8 - 2 is 6, ओके, सो 6/2 is 3, तो 3 है आपका आंसर। कैसे,
कैसे अगर आप लोग को जानना है, आप लोग पूछेंगे ये कैसे आ गया, ये तो कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आना ही चाहिए, कोई स्पेसिफिक रूल कैसे आ गया। तो ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। कैसे है ये शॉर्टकट, आपको अभी दिखा देते हैं हम कि अगर आपका वैसा फॉर्म का कुछ रहेगा, जैसे कि इधर पे था, क्या था, मैं प्रीवियस पेज पे जाता हूँ और लिखता हूँ क्वेश्चन को। रूट अंडर, ये था रूट अंडर 10 माइनस एक्स, नीचे था रूट एक्स, और इधर था 10 माइनस एक्स। नीचे क्या था याद नहीं आ रहा है, हाँ 2 था, 2 था याद आ गया, और ऊपर था 8, राइट 8। तो इसको आप लिखेंगे तो देख सकते हैं, अभी वो फॉर्मूला यूज करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, मतलब ये वैल्यूज थोड़ी नहीं इक्वल होंगे, dx ये भी आई है, ये भी आई है, तो दोनों आई को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो लिख सकते हैं ना 2i, पहले 2i, पहले तो 2i हो गया। अब देखिए कि a प्लस बी यहाँ पे क्या होगा, 8 प्लस 2 मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 10, और 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स। तो अभी जो x है, हर जगह पे x को रिप्लेस करो 10 माइनस एक्स से, ठीक है। सो इधर से अगर आपको इंटीग्रल लाना है, इसको लिख सकते नथिंग बट इक्वल्स टू, नथिंग बट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 माइनस ऑफ 10 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स की जगह बैठाएंगे 10 माइनस एक्स, प्लस अगेन 10 माइनस 10 माइनस एक्स। तो इससे कुछ नहीं होगा, ये 10 तो कट गया, ठीक है। सिमिलरली इधर भी ये 10 कट गया, प्लस 10 माइनस 10, और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, नथिंग बट रूट एक्स, ये डी एक्स ऊपर है, डी एक्स रूट एक्स बाई 10 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। तो आप देख सकते हैं ये कम्यूटेटिव है, एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव ऑफ वेरिएबल्स a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a, एडिशन ऑफ वेरिएबल्स इज कम्यूटेटिव। तो इसको हम घुमा के फिर से लिख सकते हैं, या लिमिट्स तो हमेशा बिठाना, क्योंकि वरना जीरो दे देगा, ये बोलेगा कहाँ से जंप करके उड़ा के दे रहा है 2 से 8, ठीक है, ये लिमिट्स है, ये लिमिट्स है, इसको सेपरेट करो, ये 8 2 है, अपर और लोअर लिमिट रिस्पेक्टिवली। तो 10, इसको अब 10 माइनस एक्स नहीं लिखना हमको, इसको अब हमको सिंपल फॉर्म में लिखना है, रूट एक्स 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ नहीं करना, अभी अभी ये भी आई है, ये भी आई था, सेम है, तो इनको ऐड कीजिए, तो देखिए आई प्लस आई हो जाएगा आपका 2i, और इन दोनों को ऐड करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ, सॉरी एक पेज ऐड कर रहा हूँ, तो उन दोनों को ऐड करेंगे 2i, प्रीवियस पेज में चलिए देखिए, तो जैसे रूट 10 माइनस एक्स, इधर से रूट एक्स ऊपर, और नीचे तो डिनोमिनेटर कॉमन है, रूट एक्स प्लस रूट 10 माइनस एक्स, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस रूट 10 माइनस एक्स, इधर भी रूट एक्स प्लस रूट 10 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा नहीं, बाई 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 बाई, तो ये इधर बचेगा dx। तो अब इधर से आराम से लिख सकते हैं 2 ऑफ आई ट्वाइस ऑफ आई इक्वल्स टू dx, और अपर लिमिट था 2, सॉरी लोअर लिमिट था आपका 2, लोअर लिमिट था 2, अपर था 8, तो 2 है इधर 8 है। तो अभी मैं बताता हूँ कि इधर हो जाएगा, देखो हाफ, आई जो होगा, आई हाफ को इस साइड ले आए, और जो इधर dx था, dx का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो क्या x आता है, दैट्स इज नथिंग बट x, एंड द लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 8, ठीक है। तो हाफ ऑफ, तो 8 माइनस 2, नथिंग बट हाफ ऑफ 6, ये कट के हो जाएगा 3, तो आंसर इज नथिंग बट 3, देख लीजिए, तो आंसर है इसका 3, 3 इज द आंसर। तो वी आर डन विथ दिस क्वेश्चन। हाँ, अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इसमें घबराने का कुछ नहीं है, जस्ट घबराने के लिए क्वेश्चन दे देगा, कोई भी देखेगा घबरा जाएगा, अरे बाप रे क्या दे दिया, नहीं, इसको आपको कोशिश करना है थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, ऐसे आप अपने आप से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपना अप्रोच दिखा रहा हूँ आप सबको, इट इज अ प्रीटी सिंपलियर अप्रोच। बस एक काम कीजिए,
ये वन को आप एक काम कर सकते हैं कि वन को स्प्लिट करो, साइन एक्स को स्प्लिट करो कॉस के फॉर्मूले में, ऐसा नहीं करूंगा। मैं बस कॉस एक्स है इधर पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। कॉस एक्स से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स, उससे मेरा क्या होगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, दैट इज वन वे। और मैं चाहता हूँ इसको रैशनलाइज कर दूं सिंपली, डिवाइडिंग छोड़ दीजिए, ये आपका थोड़ा झमेला हो जाएगा। सिंपली रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने का मीनिंग क्या होता है कि सिंप्लीफाई करने के लिए सपोज कुछ रहा a माइनस रूट बी, मैं सपोज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको वन लाना है। ऊपर है 2 + √3, नीचे है 2 - √3, तो 2 + √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये तो 2² 4 आ गया, -√3² मतलब क्या 3 आ गया, तो ये 1 हो गया, ये रिड्यूस हो गया। तो मैं यहाँ भी सिमिलर क्या करूंगा, 1 माइनस साइन एक्स नीचे है, इसका कंजुगेट जो होता है, मतलब डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या है, 1 + साइन एक्स है। सिंपली 1 करना है, ऐसा नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका कंजुगेट जो होता है, कंजुगेट मतलब क्या, कि अगर एक मतलब कंजुगेट जो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है, a + ib अगर z होता है, तो z का जो कंजुगेट होता है, कंजुगेट, ठीक है, इसको होता है a - ib, ठीक है, ऐसा ही लिखा जाता है। इसलिए कम इसका कंजुगेट जब लेंगे तो बस सेकंड जो टर्म रहेगा, मतलब वेरिएबल का जो मतलब क्या बोल सकते हो आप, कि ए मतलब ऐसा भी रहे 2 - √3 जैसे इधर पे था, अगर 2 + √3 होता है उसका कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तब बोलते हैं हम 2 - √3, तो ऐसे मान सकते हो। 1 + sin x है तो 1 - sin x, तो मतलब वेरिएबल के पहला का साइन आप चेंज कर दो, उससे फिर मल्टीप्लाई करो। 1 - sin x डिनोमिनेटर पे जो है, डिनोमिनेटर का जो है 1 + sin x अगर रहता तो 1 - sin x से होता, 1 - sin x है, ठीक है, इसलिए 1 + sin x से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 + sin x, जो आपका क्या है, इसका कंजुगेट, ठीक है, मतलब वो कुछ प्रोडक्टिव देना चाहिए। 1 + sin x, अब a² - b² ऐसा फॉर्म का मतलब हो जाना चाहिए। 1 - sin x, that is nothing but cos²x. How? 1 - sin²x equals to cos²x, because sin a² x plus cos²x equal to 1. So you हम क्या करेंगे, 1 - sin a² इस तरफ ले जाओ, तो प्लस साइन जो है वो माइनस होके चला जाएगा। तो सिंपल वही मैं बताना चाह रहा हूँ, that I am want to convey here, that 1 + sin x को if we multiply, then 1² - sin²x, so 1² is 1, 1 to the power n is even 1, so that is no doubt. And 1 + sin x, it will become 1 + sin x whole square or whole square, anything you can tell. I'm going to the next page. Okay, so we had got finally 1 + sin x whole square by 1 minus sin square x dx. Now if you are solving it, so what you will get, 1 minus sin square x is cos² x dx, and this I'm simplifying simply, a plus b whole square, so a square plus 2ab, 2 sin x into 1, simply 2 sin x, because anything into 1 is itself, so a into 1 equals to a, so 2 sin x plus sin square x dx, so as simple as that, right? Now if you want to do this, so what you have to do, so let's see what we can do here. 1 by cos² x, so first of all we just split it step by step. Okay, 1 by cos² x dx plus 2 is constant, we can take it out, no need to integrate a constant, no value of integral, 2 sin x by cos² x dx plus sin² x by cos² x dx. Okay, so this is the thing. Now we can see sin x by cos x, one, okay, we can write this cos² x as cos x into cos x. We can see that 1 by cos² x is nothing but sec² x, so integration of sec² x dx. Okay, 2 is out, no problem. Sin x by cos x, that is nothing but tan x. Okay, and 1 by cos is nothing but sec x, so sec x. Okay, and now in the last term sin² x by cos² x, we know that it is nothing but
it is nothing but, sorry, it is nothing but tan square x. Okay, sin x by cos x is tan x, so those whole square sin x by cos x square tan square x dx. Now it will be better if we make our observation power good. Now I am trying to integrate this. So we can see, we can write from here directly. It is nothing but sec square is nothing but tan x. So that is simply equals to tan x. We can write this like rearrange this and write it is sec x tan x, because in trigonometric identities, if something is given as sin a cos b, okay, we can write it as cos b sin a. Same thing. Okay, it is commutative multiplication. So tan x sec x equal to tan x sec x. Sec x tan x equal to tan x sec x. So sin a, if it is even cos a also, then cos a sin a, same cos a sin a, cos a into sin a. So now we can see from here. So sec x tan x, this integral will be equals to sec x. Okay, because the derivative is sub sec x is sec x tan x, integral will be reverse. Again tan square x we cannot integrate directly, but we can integrate, but that is the direct formula is not there. So what we do, we convert it into sec square form. So sec square x minus tan square x equal to 1. We know here that sec square x, okay, sorry, yeah, minus tan square x, this is 1. So you can write tan square, if we take this and 1 this side, interchange those, so no problem will be there. Sec square x minus 1 equal to tan square x. So you can write over here sec square x minus 1 dx. Okay, यू कैन राइट लाइक, मतलब क्या बोल सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो या लिख दो, इधर पे लिख सकते हो, मतलब एक साथ इंटीग्रेशन इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करने पे उतरो कि दैट इज दोस आर नथिंग बट इक्वल टू sec square x minus 1 dx. तो sec square x को फिर आप लिख सकते हो, इधर इधर पे आएगा आपका tan x, ठीक है, इधर पे आएगा आपका tan x, तो मतलब 2 tan x आ गया इधर पे, 2 tan x 2 sec x, ठीक है, माइनस 1 बताया मैंने, सो दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1 into dx का integration मतलब minus x plus c. So it is final answer is, if we take the 2 common, the final answer from this step, I am going back to the final this step. Okay, 2 into sec x plus tan x plus x minus c, where c is nothing but the constant of integration. So this is the another basic thing. So now I hope this is my last question. Okay, and I will, after the ISC, for ISC, after that I will give a question as homework, and I will continue the rest, solving the rest question in the next of my video. So you can see this is also a ISC question. So how to approach this type of kind of questions? So we need to do nothing, just try to simplify it. Integration of sec square x dx by cos square x, cos x square x, sorry, cos x square x. So sec square x is nothing but 1 by cos square x. You can write na baba, no problem. And cos x square x we can write as 1 by sin square x, right na baba, and dx will be there. And we know that if something is given as 1 by a divided again by 1 by b, okay, then we can write it as b by a. Why? Because it becomes 1 by a into b by 1, it is reversed, so b by a. 1 is there na, so no problem. So b by a. So from this formula we can, मतलब दिया formula ये जो बताया हमने, from here we can write simply here, we can write here simply sin square x by cos square x dx. Okay, and that is nothing but again tan square x dx. That is nothing but sec square x minus 1 dx. Okay, and this is nothing but, this will reduce to again sec square x dx. So I am saying, I was telling this in the previous, so I didn't. So sec square x dx, we split it, minus 1 dx, मतलब simply minus dx भी आप लिख सकते हो,
ये इसके जगह आप क्या भी लिख सकते हो पता है, माइनस dx, सेम है, कोई नंबर नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा। ये होगा 10x, राइट, ये होगा माइनस एक्स, ये होगा प्लस सी। सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये आपका हो गया। और भी जो था इसमें मैं नहीं करूंगा ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, अगर प्रॉब्लम हुआ फिर दिखाऊंगा। आप लोग इसको आई मान लो, पहले तो मान लो आई। और एक प्रॉपर्टी, क्या वो प्रॉपर्टी यूज करो कि इंटीग्रल ऑफ f of x dx from the limit a to b is nothing but equals to integral of f of a plus b minus x dx। ठीक है, इसको लगाओगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सिंपल पाई बाई 4। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, हाफ इंटू बी माइनस है। कैसे लगा रहा हूं ना मैं, आपको जब दिखेगा ऐसा कुछ आप समझ सकते हो कि ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, राइट। और एक फॉर्मूला कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये बेसिक हम सब पढ़ते आ रहे हैं। पाई बाई 2 नथिंग, पाई बाई 2 रेडियन इज नथिंग बट 90 डिग्री। ये रेडियन है क्योंकि 90 इंटू पाई बाई 180, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियन है, ये है डिग्री। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो आप दोनों को ऐड करना, तो ये साइन कॉस बन जाएगा और नीचे तो सेम ही रहेगा, मतलब b प्लस ए हो जाएगा, b प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। वो प्रॉपर्टी लगा के इधर पे a और a प्लस बी नीचे ऊपर कट गया, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो हाफ इंटू एक्स फ्रॉम, मतलब हाँ फ्रॉम अपर लिमिट, मतलब फ्रॉम ए टू बी, मतलब लोअर लिमिट है, अपर लिमिट बी। तो ये नथिंग बट हाफ इंटू बी माइनस से जब पुट करोगे एक्स के ऊपर, तो इट इज दिस आंसर इज पाई बाई 4। सो ये दोनों प्रॉब्लम हम कर लिए, और ये मैं ऐसे डिस्कस किया। आप लोग अगर प्रॉब्लम फेस करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दे दूंगा। अब ये दो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, लेकिन मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग कर पाओगे। ये आइलेट रूल लग जाएगा इसमें, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट रूट एक्स जो है ना, रूट एक्स, उसको बस एक ही सब्सटीट्यूशन आपको करना है कि रूट एक्स को आपको पकड़ लेना है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा, तब क्या होगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को पकड़े हम, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऐसे कि सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ कि ना, बस बताते जाना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, लेकिन हमारा कोई फायदा नहीं है लिख के, क्योंकि हमको इधर पे डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट नहीं करना है। तो 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। करके देखना, पहले tan थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, जो चेन रूल रहता है, पावर चेन रूल भी बन सकते हो, पावर चेन रूल, पावर चेन रूल। तो इधर पे tan थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर लो, d tan स्क्वायर थीटा, d tan थीटा, राइट, डी थीटा, 2 tan स्क्वायर डी थीटा, ये रहेगा इनटू, क्या लिख सकते हो, d tan थीटा बाई डी थीटा। tan मतलब सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यही फॉर्मूला आएगा, 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इधर पे सब्स्टिट्यूट करो, तो tan इनवर्स ऐसा कर लिखते हैं हम, tan इनवर्स रूट एक्स, मतलब tan स्क्वायर थीटा का रूट लोगे तो tan थीटा आ जाएगा सिंपली। पॉजिटिव रूट ही है, नेगेटिव तो नहीं है। तो tan इनवर्स tan थीटा इज नथिंग बट थीटा। कोई लिमिट्स तो दिया नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है, वरना अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेंट का झमेला हो जाता है, तो ग्राफ को आपको देखना पड़ता है। tan का ग्राफ कुछ ऐसा तरह का जाता है, मतलब इनवर्स का ग्राफ पूरा घूम जाता है। तो इनवर्स इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन अबाउट, ऐसा ही कुछ प्रॉपर्टी था, स्पेसिफिक लाइन। सो हाँ, अब मैं ये प्रॉब्लम इसका बताना चाहूंगा। अब इधर पे आपको कुछ नहीं करने का, आपको वही वही फॉर्मूला लगा देने का, जो आई वाला फॉर्मूला मैंने बताया ना पहले भी, कि एफ ऑफ ये वाला फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो दिस फॉर्मूला यू नीड टू अप्लाई, सी दिस वन, दैट आई इज नथिंग बट, ओके, आई इज नथिंग बट, सो आई एम सेइंग हियर, मैं करता हूँ आपके सामने, ओके। अब इसको आई मान लो, मान लिया आई। अब कुछ नहीं, दिस इज सिंपली इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लिखो ऐसे,
लिख दिए। अब इधर पे लिखो कॉस ऑफ माइनस एक्स, लिखो कॉस ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। और इधर नीचे लिखो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। क्यों? एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, क्योंकि इधर देखो अपर लिमिट रही है, तो रिप्लेस करके आप देखोगे कि 1 बाई ई टू द पावर एक्स, डिनोमिनेटर सेम आ गया, बस न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, dx, सॉरी cos x dx लिखो। हाँ, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा e टू द पावर x cos x dx। अब कुछ नहीं करने का, दोनों को ऐड कर दो सिंपली, तो 2i क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा, cos x तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस ई टू द पावर x यहाँ पे भी आ जाएगा, e टू द पावर x dx, और नीचे रहेगा 1 प्लस ई टू द पावर x, तो क्या ये कैंसिल आउट हो गया। तो इट इज नथिंग बट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक cos x का इंटीग्रेशन, इट इज नथिंग बट sin x, हाफ ऑफ, तो आई क्या होगा, हाफ ऑफ sin x होगा, फ्रॉम द माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो sin एक ऑड फंक्शन होता है, तो इधर पे आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ sin ऑफ पाई बाई टू इज वन, वन माइनस ऑफ माइनस वन टू, दैट इज वन, तो इसका आंसर आ जाएगा वन आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू वन, परफेक्ट वन आएगा, ठीक है, वन, यहाँ पे वन लिख दिया मैं, ठीक है। तो और एक प्रॉब्लम मैं देना चाहूंगा आप सबको, और आपके सामने सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, और इससे पहले मैं ये प्रॉब्लम भी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, मैं करा देता हूँ। इधर भी आप देख सकते हो, कुछ नहीं करने का आप लोगों को, बस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करने का, बस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इसको आप जेड पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो जेड पुट, तो इधर से देख सकते हो 2x डी एक्स इक्वल टू डी जेड आ गया, तो अब x डी एक्स क्या हो जाएगा, डी जेड बाई टू, तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे पुट करने का कोशिश करो, तो एक्स डी एक्स तो ऊपर है कि नहीं, तो इधर से आप लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, ठीक है, इसको साइड में करना, इसको साइड में करना, दिस इज नॉट इन रफ बट इन इस साइड, मतलब मार्जिन के, मार्जिन मतलब आपने से एक मार्जिन ड्रॉ करना, उसका राइट में लिखना, और फिर सॉल्व इधर पे करते रहना लेफ्ट पे। तो अब देखो, अब इधर को इसको लिख सकते हैं dz बाई टू, तो टू तो बाहर आ जाएगा, मतलब हाफ हाफ बाहर आ जाएगा, इसको बैठा दो dz, dz बाय z, मतलब ये क्या होता है, 1/z है, 1/z क्या लॉग होता है, तो लॉग मॉड z, ठीक है, बेस ही होता है ln, इसको हम लिखते हैं क्या, हाफ ऑफ ln मॉड z, प्लस सी तो रहता ही है, प्लस सी, तो हाफ ऑफ ln मॉड z, मतलब ln मतलब लॉग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लॉग ऑफ, ठीक है, मॉड छोड़ सकते हो, मॉड लॉग जेड भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलएन या फिर लॉग जेड भी लिख दो सिंपली, एलएन क्या मोर प्रोमिनेंट रहता है, मतलब मोर क्लियर रहता है, क्लिस्टर क्लियर, तो लॉग ऑफ जेड क्या है, जेड को आप पुट बैक करना पड़ेगा, जेड को हम पकड़े थे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन पकड़े थे, माने थे हम, तो एज्यूम, मतलब एज्यूम नहीं, मतलब सब्स्टिट्यूट, वी सब्स्टिट्यूट दैट, सो इधर पे पुट बैक करेंगे तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, हाफ का बाद, अगर आपको ऑप्शंस देखना है प्लस सी, अब ऑप्शंस में देखो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता और ऐसा कुछ ऑप्शन दिया रहता लाइक समथिंग लाइक लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, अरे भाई तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हाफ जो है ना, इसको पावर में लेके जाओ ना, तो रेस्ट टू द पावर हाफ, तो रेस्ट टू द पावर हाफ मतलब क्या, मतलब ए रेस्ट टू द पावर वन बाई एन अगर लिखते हो तो क्या होता है, रूट nth रूट ऑफ सम दैट क्वांटिटी होता है ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो मैं इधर इसके साथ खत्म करना चाहूंगा आईएससी पार्ट को, एक प्रॉब्लम देता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को नहीं मिला, लेकिन आईएससी में मोस्ट प्रोबेबली पूछा गया, ए टू द पावर एक्स क्यूब, ओके, सॉरी, थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, हाँ यही था प्रॉब्लम, यही है, बस एक ही चीज, हाँ, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डीएक्स, ऐसा अगर आपके पास दिया रहता है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, इट इज एज सिंपल एज, कोई सोचेगा इधर पे हम आइलेट लगा देते, आप लगा सकते हो, लेकिन आप झमेला में फंस जाओगे, एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो ना, कि जब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दोनों एक साथ रहता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, पहले क्वेश्चन देखकर झट से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ भाई ये तो इसका डेरिवेटिव हो सकता है, सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन कैसे भी अगर हम लोग इधर पे 3x² ला दे, डेरिवेटिव हो जाएगा, तो वन थर्ड से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 3x² ऊपर ला दो, e टू द पावर एक्स क्यूब dx ला दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको z मान लो, एक्स एक्स क्यूब को, बस सॉरी पूरा करना, बस एक्स क्यूब को z मान लो, आपका आंसर आ जाएगा आराम से, वन थर्ड e टू द पावर z dz, तो दैट इज नथिंग बट वन थर्ड ऑफ e टू द पावर z प्लस c, तो अब पुट बैक करो,
अब पुट बैक क्या करोगे, एक्स क्यूब को अब जेड माने थे, तो e टू द 1/3 e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी, राइट। तो एक्स क्यूब को जेड माने थे, तो 3x² dx इक्वल dz। तो x² dx तो इधर पे था, देखिए x² dx ये था इधर पे, तो इसको आप लिख सकते हैं x² dx इम्प्लाइज ही लिखते जाओ, इम्प्लाइज x² dx इक्वल टू dz/3, ठीक है। तो 1/3 इसीलिए ला दिए मैं। अब ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट भी, जैसे मैंने किया। आप मल्टीपल अप्रोच यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, बस आपका प्रैक्टिस जितना रहेगा आप खुद खुद उतना समझते जाओगे, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। जेई में तो और भी स्पीड में किया जा सकता है। ये इज फॉर द ट्रेडिशनल आईएससी अप्रोच। तो 1/3 ये आंसर होगा e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी। बस पुट बैक करना है रिजल्ट को। अगर डेफिनेट होता है तो डेफिनेट में पुट बैक का कोई जरूरत नहीं है, उधर आप लिमिट्स ही चेंज कर दे रहे हो ना, तो नो नीड टू पुट बैक। तो हम चला जाएंगे फाइनल सीबीएसई का कुछ क्वेश्चंस में, उसके बाद हम अपना ये खत्म करेंगे। हाँ, ये रहा सीबीएसई का क्वेश्चन, देख सकते हैं आप यहाँ पे भी। ये आईलेट रूल है। आईलेट में इस लेक्चर में नहीं दिखाऊंगा, मतलब इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा, अगले कुछ वीडियोस में करूंगा। तो अब देखिए, ये जो है ये भी आपका अगले वीडियो में किया जाएगा, क्योंकि ये जो चीज है इसमें आपको दोनों चीज करना है। पहले ये मैं दिखा देता हूँ फिर भी, क्योंकि इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, यू कैन डू इट इन अ मिनट, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें दो चीज यूज होता है। पल्स फर्स्ट थिंग इज सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा आपको। सेकंड, प्लस क्या लगने वाला है, दो चीज लगने वाला है इधर, कॉम्बिनेशन। जैसे आप जब चाय बनाते हो ना, उसमें क्या क्या डालना चाहिए, तीनों चीज डालना चाहिए ना, पानी, चाय पत्ती, ये दो मिनिमम चीज। कोई अगर शुगर पेशेंट हो, अगर बिना क्या बोलते हैं, बिना शुगर के पीता है, या फिर शुगर फ्री भी नहीं लेता कोई आदमी, उसको कोई बीमारी हो गया, उसका टेस्ट चला गया, तो क्या उसका टी लिव्स तो उसको देना ही पड़ेगा, कॉफी भी देना पड़ेगा ना। कॉफी भी अगर कोई, अगर टी कॉफी कुछ भी हो पिए, तो उसमें डालना पड़ेगा ये दो चीज, वरना उसका इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर कोई क्या बोलते हैं शरबत पी रहा है, शरबत में भी उसको मिनिमम वाटर तो डालना ही पड़ेगा, H2O, साथ में शुगर डालो, ठीक है। शुगर, ग्लूकोन डी, शुगर छोड़ दो, अब कोई ग्लूकोन डी बना के पी रहा है, उधर पे तो सॉल्ट भी बोल देगा, ग्लूकोन डी, ये दोनों चीज डालना चाहिए। ऐसे इस बार क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना है, साथ में पार्शियल फ्रैक्शन को भी, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूज करो पार्शियल फ्रैक्शन, आप तो ये चुटकी में करोगे विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, कोई बेवकूफ बंदा है वो यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो यूज कर सकता है, बोलेगा हाँ सर ऐसे यूज करें, हाँ बोलेगा हाँ सही है। तो पहले देखो इधर पे x² है, 2x है, तो इधर पे डायरेक्ट आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा पाओगे, इसलिए आपको क्या करना है, पहले रिडक्शन कर लेना है, ट्रांसफॉर्म करना है। इसलिए x² को t पुट कर दो x² को t, फिर आपका क्या आ जाएगा, ट्वाइस एक्स dx इक्वल टू dt। सो देखो ट्वाइस एक्स dx था ऊपर, था कि नहीं था। तो ऐसे भी प्रॉब्लम ऐसा कोई रहा कि x⁴ x², या फिर x² x⁴, फिर कुछ नहीं करना, x² को आपको मतलब x dx, नीचे x⁴ है सपोज हाईएस्ट पावर, तो x² का होल स्क्वायर करो, x² को जेड पुट कर दो। इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, अपने दिमाग में खिलाना पड़ेगा, x⁶ रहे ऐसा, तो x² का होल क्यूब ऊपर, मतलब ऊपर जो है, ऊपर एक इंपॉर्टेंट वाइटल चीज x dx है, इसलिए मैंने सोचा कि x² है, हाँ सही है, आप इसको रिड्यूस करना ही पड़ेगा, वरना तो हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो x dx इक्वल टू dt/2, ठीक है, मतलब ट्वाइस दिस इज dt, सो इट इज नथिंग बट x dx इज नथिंग बट dt/2। सो अब इसको पुट करते हैं क्वेश्चन में। सो हाफ हाफ तो बाहर ला सकते हैं हम, कोई दिन dt/2 हाफ बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा t+1 इंटू t+2। अब देखो कुछ नहीं करने का, अब बस दिमाग लगाने का। इधर ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है कि नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, t+2 माइनस t+1, ठीक है, dt होल इंटू dt, और नीचे रहेगा t+1 इंटू t+2, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं, सॉरी एक पेज ऐड करना पड़ेगा, चलिए। तो हमारा वही आया, मैं दिखा देता हूँ, t+2 माइनस t+1 dt, और t को हमने अज्यूम किया था x², ठीक है, वो हमको लास्ट में पुट बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन है। अब देखिए t+2 इंटू t+1, तो इधर से क्या होगा, t+2 रफू चक्कर, तो 1/t+2 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ t
प्लस वन, ठीक है, डी टी बाई टी प्लस वन, ठीक है, इंटू टी प्लस टू। इसे कुछ नहीं है, सॉरी, टी प्लस वन आउट हो जाएगा। हाँ, टी प्लस वन आउट हो जाएगा, नीचे ऐसा बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता है, डी टी बाई टी प्लस वन, ठीक है, माइनस ऑफ डी टी बाई टी प्लस टू। अब इसको आप लिख सकते हो इधर से, ये नथिंग बट लॉग ऑफ टी प्लस वन, ठीक है, लॉग ऑफ, मॉड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस टू, ठीक है, प्लस सी। इसको फाइनली आप क्या लिख सकते हो, लॉग मॉड, एक फॉर्मूला में यूज करता हूँ उधर पे लॉग का, तो दिखा देता हूँ, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, अगर आप लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स बाई वाई, या मॉड भी इधर पे रहेगा तो टोटल पे मॉड लगा दो, लॉग ऑफ मॉड एक्स बाई वाई। अगर ये प्लस रहता, प्लस माइनस की जगह, तब हो जाता लॉग ऑफ मॉड एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक है। इधर पे हो जाएगा कुछ नहीं, बस टी प्लस वन बाई टी प्लस टू होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, माई प्लस सी। तो इधर से आप टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट पुट बैक कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट बैक मतलब बैक सब्स्टिट्यूशन जिसको बोल सकते हो, मतलब जो माने थे उसका उल्टा, उसको बिठा देना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, लॉग ऑफ मॉड, ई भी रहता है इधर पे, प्लस सी। मोस्ट परफेक्ट इज एल ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, ठीक है, प्लस है, ये सब प्लस है, प्लस सी। तो where c is the nothing but constant of integration, where c equals to constant of integration, ये लिखना हमेशा एग्जाम में, वरना क्या होगा, आपका हालत खराब कर देगा, काट देगा, एक नंबर कर देगा। तो ऐसा आईएससी में तो करता है, अब सीबीएसई का उतना मेरे को पता नहीं। तो यही था आज के लिए, आशा करता हूँ इतना ही काफी है। ये भी वैसे ही कुछ सॉल्व होगा, ठीक है, आपको पुट कर देना है तो कट जाएगा, एक्स टू द पावर 5 आ जाएगा, तो जैसे जीरो आना चाहिए, एक्स टू द पावर 5/5 में आप अगर ऐसा पुट करोगे, -3 से -3, जीरो नहीं आएगा, सॉरी, 3 टू द पावर 5, हाँ, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ऑड आ गया ना, जीरो नहीं आएगा। 2 इंटू ऐसा लिख सकते हो, 2 इंटू 0 से 3 एक्स टू द पावर 4 dx, सेम ही आएगा, क्योंकि 3 क्यूब 3 टू द पावर 4 कितना होता है, बता सकते हो आप, व्हाट इज द 3 टू द पावर 4, 81 होता है, तो 81 है, तो बाई 3 है, 3 सही बोला मैंने, सॉरी 5/5 है, 3/5, और एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा, सॉरी 3 टू द पावर 5 मतलब 273, ठीक है, 273 नहीं, 243, 243, 243, 81 इंटू 3 मतलब 3, तो 243, सो इधर पे 243 आ जाएगा, 243, 2 इंटू दिस बाई 5, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते कि, देखिए इधर पे क्या होना चाहिए, इधर पे e टू द पावर -6 आ जाएगा पहले तो, जब पुट करेंगे तो नीचे तो e टू द पावर x प्लस 1 ही रहेगा, ऊपर e टू द पावर x आ जाएगा एक, इधर पे 1 है तो +1, तो ये आउट हो जाएगा, x टू द पावर 4 dx बचेगा, इसलिए मैं बोला -3 से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ नहीं, x टू द पावर 5/5 आएगा, -3 से 3 तक, तो पहले 3 पुट करोगे तो 3 टू द पावर 5/5 आ जाएगा, हाँ सॉरी, मैं गलती किया, और इधर पे आई तो है, आई 2 आई मैंने लिखा था, 2i, सो आई इक्वल्स टू हाफ, तो बाई 10 आ जाएगा, 1/5 है, और हाफ का 2 इंटू नहीं, हाफ, हाफ हो जाएगा, बाई टू, सो 1/10 3 टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 5 माइनस ऑफ -3 टू द पावर 5, राइट, बाई 10, लेकिन क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस को बाहर निकालो, -1 का व्हाट पावर क्या हो जाता है, वो हमेशा -1 होता है, अगर इवन पावर रहता तब ये +1 होता है, ठीक है, इसलिए 3 इंटू -1 टू द पावर 5, तो वही तो -2 टू द पावर 5 होता है, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 इंटू -1 टू द पावर 5, ऐसा सेम है, तो ये तो -1 है,
तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए 3^5/10, तो 2 इंटू 3^5/10 ऐसा लिख सकते क्या, 2 इंटू 2 बार a प्लस a क्या 2a, सो 2 से एक 2 तो चला जाएगा, तो इसलिए 3^5/5 आ जाएगा। द फाइनल आंसर इज 3^5/5, that is nothing but 243, because 3^5 is nothing but 243/5। तो ये होगा इसका आंसर 11th का। तो प्रीवियस पे चलते हैं। शायद मैंने और एक प्रॉब्लम जो मैं दिखा था ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, वो मैं बोलता हूँ। ये नहीं, जहाँ पे कटने का कुछ बताया था मैंने, हाँ ये वाले में। तो यहाँ पे सब सही है, सब सही है। 10, ये वाला 2i, हाँ। तो यहाँ पे हाफ, हाँ हाफ आपको लगाना पड़ेगा, वो मैंने किया है, सही है सही है। अगर नहीं होता तो दिक्कत होता। और अगर ऐसा कुछ दिखे कि मॉड के अंदर, अगर मॉड एक्स है उसको सिंपल आपका इंटीग्रेट करना, आप ग्राफ से भी कर सकते। अगर कुछ और आपको दिखे कि 2x+1 यहाँ पे है, सपोज इसको z मान लो ना, इसको z मान लो, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, जब x को 0 पुट करो लोअर लिमिट पे, ये 1 आ जाएगा, और इसको 1 पुट कर दो, ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको मतलब z dz, मतलब 2x+1 को मान रहे हैं मॉड z dz पे आप देखो 1 से 3 तक मॉड z क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। इन यहाँ z वेरिएबल है, लेकिन उसका ग्राफ भी ऐसे 1 से 3 पॉजिटिव जाएगा, तो z dz ही आ जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हो क्या होगा, अब देख सकते हो क्या होगा, z dz का इंटीग्रेशन लिमिट्स 1 to 3 z²/2, और 1 से 3, तो 3^2 मतलब 9 - 1/2, 8/2 मतलब 4, इसका आंसर 4 है। इसमें क्या करो, इसमें कुछ नहीं करने का, इसमें साइन वन, हाँ 1 + cos x sin स्क्वायर x, तो इसमें कुछ नहीं करने का, साइन स्क्वायर को बिठा दो, 1 + cos x sin स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर, दैट इज 1 - cos x, 1 + cos x, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका कुछ एक आउट हो जाएगा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ इधर पे 1 + cos x आउट हो गया, तो 1/1 - cos x dx रहेगा। इसको आप इंटीग्रेट करना होगा आपको। इससे क्या हो गया, आपका प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। अब 1 - cos 2 थीटा, मतलब थीटा अगर लिखे 2 sin स्क्वायर θ/2, तो इधर पे लिख सकते क्या कि इधर पे तो ऊपर क्या है tx है, नीचे 1 - cos x, नीचे 1 - cos x है, तो आप लिख सकते इसको हाफ sin स्क्वायर θ/2। ये होगा कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच, इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच। इसको मैंने तोड़ा, फिर ये क्या, तो सिंपल स्प्लिट करो ना, 1/sin स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर x dx, प्लस क्या होगा, cos x/sin x एक होता है cot x, ठीक है, और cos है, और 1/sin x क्या, cosec x, तो cosec x cot x, क्यों, क्योंकि a b इक्वल्स टू b a, b इंटू a इंटू b इक्वल्स टू b इंटू a cos साइन कुछ भी हो सकता है, b भी cos साइन कुछ भी होता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो इन दैट केस cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सिंपली माइनस ऑफ cot x, ये तो थीटा नहीं है, x है, ठीक है। cosec x cot x का मतलब क्या होता है, माइनस cosec x होता है, माइनस cosec x प्लस c, तो माइनस cot x माइनस cosec x प्लस c, ये आपका आंसर है। ओके, तो विद दिस आई कम टू एन एंड, एंड आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा, और इन द रिमेनिंग वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन मैं लास्ट फिर भी दिखा देता हूँ, उसके बाद मेरा एंड हो जाएगा। ओके, ये लेक्चर एंड होगा। इधर देखो कि cos टू द पावर 4 है आपका इवन फंक्शन, राइट, ये क्योंकि हमेशा नेगेटिव, तो cos x तो एक इवन है, क्योंकि cos क्यूब भी आपका इवन ही होता है, क्योंकि ये माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है। अब x टू द पावर 17 एक ऑड फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें माइनस डालो, माइनस x का ऑड पावर, मतलब x इंटू -1, मतलब x टू द पावर 17, x को कुछ पता नहीं, लेकिन -1 की वजह से इसका ऑड पावर, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, माइनस को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जब इसको लिखोगे तो ये 0 आ जाएगा, सिंपली डी। ऐसे ही मतलब
कितना जल्दी सॉल्व हो गया। तो विथ दिस आई कम टू एन एंड एंड थैंक यू एवरीवन जो लास्ट तक देखे लेक्चर कर, कुछ अच्छा सीखने को आप सबको मिला है तो प्लीज कमेंट नाइस, और साथ में और एक कमेंट भी डालिएगा कि कोई अगर आपको प्रॉब्लम हुआ है, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर, मतलब वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन का अप्रोच समझ में नहीं आया होगा, कहीं पे भी मैंने बहुत फास्ट या फिर बहुत स्लो समझा होगा, वो सारा प्लीज स्लो या फिर फास्ट अगर मैंने कर दिया होगा, कहीं पे मेरा अप्रोच गलत हुआ होगा वो भी जरूर बताइएगा ताकि मैं आप सबसे कुछ सीख पाऊँ। अगर मेरे में कोई दिक्कत है मैं उसको सुधार पाऊँ और आप सबके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लाते जाऊँ और अच्छा अच्छा वीडियो लेक्चर लाते जाऊँ ताकि आप सब एक साथ मिलके मेरे साथ मिलके आप सबका जेई मेंस जेई एडवांस सब में अच्छा रैंक आए और बोर्ड्स में भी आपको 99 टू 100 मार्क्स मिल सके। 99 टू 100 क्योंकि मेरा आया 96 और मेरे साथ जो जो पढ़ेगा मेरा फुल कॉन्फिडेंस उनका 99 टू 100 आएगा अगर उनका कैलकुलेशन एबिलिटी का। मेरा कैलकुलेशन में तकलीफ था, ब्रेन थोड़ा थोड़ा स्लो चलता था, कुछ कुछ क्वेश्चन में सही से नहीं कर पाया, मतलब एग्जाम के बाद लगा नहीं भाई वो वैसे नहीं वैसे होना चाहिए था। तो ऐसा प्रॉब्लम्स मेरे में है। तो अगर आप लोग का मेरे साथ लगे रहोगे तो आपका 99 से 100 मिनिमम आएगा। जो खराब स्टूडेंट भी है तो उनका भी मैं गारंटी दे सकता हूँ 97 प्लस आएगा ही आएगा। 97 टू 100 के अंदर आप लोग को मार्क्स आएगा। बस लगे रहो, करते जाओ प्रैक्टिस, और एग्जाम में कोई गलती ना हो, पक्का 100, पक्का 100। चलिए, तो विद दिस आई कम टू एंड एंड। और जेई मेंस में भी मैं एक कोर्स स्टार्ट करूंगा बहुत जल्दी, उसमें आपको मेरा गारंटी रहता है 120 में। कोई यूट्यूबर कोई यूट्यूब का सर गारंटी नहीं देता, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 120 में मिनिमम आपको 100 मार्क्स मिल के ही रहेंगे। मिनिमम 100 मार्क्स मिलेगा, 5 क्वेश्चन मैक्स गलत हो सकते हैं अगर आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे जेई मेंस तक। तो with this I am ending, so thank you everyone, have a nice day।